So what we were discussing, so in question number D, which of the following is a disadvantage of the sole proprietorship? The answer will be first, limited sources of fund. That is clear. Everyone turn on your camera. Everyone. And the second one is, next question is, which of the following requires the owners to be generalist manager with many diverse skills? What will be the answer of this? And first, sole proprietorship. So the answer of this will be sole proprietorship. Why the answer is that? Because in the partnership, we all know that whatever the number of partner is, everyone is skilled in the different areas. So in that situation, we don't require that one person should one person have diverse skills. In the next question, corporation, there are the different managers for the different areas. In the holding company, the same situation is there. In the cooperative, same situation. So there is only one situation where only one owner is required, and that is sole proprietorship. And one person have to do so many things at one go. ठीक है, एक person को ही सारे काम करने पड़ते हैं, इसीलिए that person should be in the have diverse skill. The person is in that situation where he is knowledgeable about so many things, right? So I guess this point is clear to all of you. E. Yes, ma'am. Okay, next, yes. Nandini, shift कीजिए question को. Yes. Now the next question is, all profits from a sole proprietorship belong exclusively to, the answer will be the owner. ठीक है? All yes, profits from a sole proprietorship belongs exclusively to the owner, because in the stockholders, the share, the profit will be shared. In the partners, the profit will be shared. Employees will get the salary. Whole profit of the company employee will not get. He or she will only get the amount which is prescribed in the offer letter. Yeah, 50,000, 60,000 employees will get. The government have not get all the profit. सारे profit को सिर्फ government नहीं रखता है. Government is also basically doing so many welfare programs. So here in the profit का तो ये government वैसे भी कोई organization वो तो है नहीं. Government is not in that business organization part. So the answer will be the owner. So I guess this point is also clear, right? So next question is, when two companies combine to form a new company, it is an example. ये क्या होगा? White knight, leverage buyout, tender offer, acquisition and merger. So the answer of this will be acquisition and merger both. इसमें आंसर आपका acquisition भी हो सकता है, merger भी हो सकता है, amalgamation भी हो सकता है. जब कोई दो कंपनी कंबाइन होती है नए कंपनी को फॉर्म करने के लिए, तो ज्यादातर इसमें आंसर हो जाता है मर्जर. अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो मर्जर होगा, बट अगर आंसर एमलगमेशन भी होगा तो यू कैन राइट एमलगमेशन एज वेल. इफ यू कैन राइट एक्विजिशन, एक्विजिशन में बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है और अपनी कंपनी में बेसिकली मिला लेती है. ठीक है, सो एक्विजिशन का मतलब होता है बड़ी कंपनी जब छोटी कंपनी को एक्वायर कर रही है. मर्जर का मतलब होता है जब आप दो कंपनीज मर्ज कर रहे हैं. ठीक है, सो द आंसर यहाँ पर तीनों हो सकता है, एक्विजिशन, मर्जर एंड एमलगमेशन. लेकिन यहाँ अगर मैं बोलूं इस क्वेश्चन के हिसाब से द आंसर विल बी ओनली मर्जर. सो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. जी, ओके. यस अनीशा. यस मैम, एमलगमेशन में आप बताई थी कि हम लोग न्यू कंपनी एक फॉर्म हो जाता है दो. हाँ, आंसर एक्चुअल में एमलगमेशन ही होगा. तभी मैंने तुम लोग को बोला ना कि द आंसर विल बी थ्री थिंग्स. एक्विजिशन कैन बी द आंसर, मर्जर कैन बी द आंसर एंड एमलगमेशन. बट इन द एक्विजिशन देयर इज नो गारंटी दैट द न्यू कंपनी विल बी फॉर्म. ठीक है, कई बार आप छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई नई कंपनी फॉर्म ही करते हैं. एक्विजिशन को हम साइड कर लेंगे तो आंसर विल बी ओनली मर्जर. यहाँ पे सिर्फ मर्जर गिवन है, उसके बाद तो मर्जर विल बी द आंसर. तो एमलगमेशन एक्चुअल में एग्जैक्ट आंसर इसका होगा, लेकिन द ऑप्शन इज नॉट गिवन, सो आई एम सेइंग दैट मर्जर विल बी द आंसर ऑफ दिस. राइट? यस मैम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स बोरोज. यस प्रतीक. मैम एक्विजिशन और मर्जर में मैम आप शॉर्ट डिफरेंस कुछ बता सकते हैं? Acquisition is, merger is something where the two companies are merging. जरूरी नहीं है कि दोनों छोटी कंपनीज हो, दोनों बड़ी कंपनीज, मतलब दोनों एक बड़ी एक छोटी हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. So merger can be possible in the two powerful companies as well, right? But in the acquisition, majority of the time acquisition is possible when the big or powerful companies are acquiring the
स्मॉल कंपनीज, ठीक है, जैसे छोटी मोटी कंपनीज को आपने एक्वायर कर लिया, वो कंपनीज जो कंपनी डूबने वाली है, कंपनी डिसॉल्व होने वाली है, तो ऐसे सिचुएशन में जैसे सत्यम जो था, आप लोग को पता होगा आईटी कंपनी था, वो उसका 2010 में था, इट वाज इन द सिचुएशन ऑफ डिसॉल्व, ठीक है, डिसॉल्व की सिचुएशन में था, देन महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी वाज इट टेक ओवर दैट, राइट? So acquisition is possible when you are acquiring, and merger is something where the two companies with the consent, एक दूसरे के consent से खुद को merge करती है ताकि दोनों कंपनी को प्रॉफिट हो। जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि मतलब merge करना मतलब दो कंपनीज मिल जाती हैं आपस में, आ रही बात समझ में? दोनों कंसेंट के साथ हो रहा है कि दोनों कंपनी आपस में मिल गई है, ठीक है? चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ group of investors borrow money to buy a company or division using the purchased company's assets to guarantee the loan, it is an acquisition, leveraged buyout, merger, poison pill, tender offer. So the answer of this will be leveraged buyout. इसका मतलब क्या हुआ मैं बताती हूँ कि जब कोई ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो कंपनीज में, बिल्डिंग्स में, एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? तो ये जो लिवरेज्ड बाय आउट होते हैं, ये क्या करते हैं? दे आर द ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, दे आर बोरोइंग द मनी। अब ये क्या करते हैं ना कि पैसा को बोरो कर लेते हैं किसी बैंक से, ठीक है? दे आर बोरोइंग द मनी एंड व्हाट दे आर गिविंग गारंटी, मतलब आप लोन लेते हैं तो आपको पता होगा कि आपको कोलेट्रल वहां सबमिट करना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं जैसे प्रॉपर्टी का या कुछ का भी, ताकि कल को अगर आपने पैसे वापस नहीं किए तो लोन के पैसे को बैंक लेने के लिए आपके उस एसेट को यूज कर पाए, है ना? So that is known as collateral. So leveraged buyouts जो होते हैं सिचुएशन में, जो इन्वेस्टर्स होंगे वो क्या करेंगे? वो आपसे लोन का पैसा लेंगे, आपके बैंक से पैसा लेंगे, और जो एसेट वो खरीदने वाले हैं, जैसे मान लीजिए अगर वो कोई बिल्डिंग परचेज करने वाले हैं तो उसी बिल्डिंग का वो एज अ गारंटी पेपर वो जाके बैंक को देंगे, ठीक है? यानी उसी परचेज प्रॉपर्टी को ही एज अ गारंटी दे देंगे बैंक को, और उसके बाद वो लोन उठाते हैं, तो इसको कहते हैं लिवरेज्ड बाय आउट। आई गेस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आया? अच्छा, आप लोग में से बहुत लोगों ने प्लेज का सिचुएशन सुना होगा कि कई बार जैसे कार अगर आप खरीदते हो तो कार का पेपर, जब आप लोन से कार खरीदते हो तो कार का पेपर बैंक रख लेती है, ठीक है? और आप कार को यूज कर पाते हो तो आप उसके पेपर्स को प्लेज कर देते हो। तो द सेम सिचुएशन इज हियर, दैट फॉर परचेजिंग द प्रॉपर्टी द इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू टेक द लोन एंड दे आर गोइंग टू put that property only which they are going to purchase as a collateral in the bank, as a security in the bank. I guess this point is clear, right? ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी वही पॉइंट है कि वो अपने कंपनीज एसेट को गारंटी दे देते हैं लोन का। ओके, सो दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप डू नॉट डायरेक्टली पे टैक्सेस। Partnership do not directly pay taxes on business profit. For this reason, they are referred to as what type of organization? ठीक है, so partnership do not directly pay taxes on businesses profit. For this reason, they are referred to as what type of organization? The answer will be non-taxable. इस साइड कीजिए पेपर को नंदिनी, क्वेश्चन पेपर को इस साइड करें, ठीक है? सो द आंसर विल बी नॉन टैक्सेबल। टैक्स एग्जम्पशन का मतलब होता है जब आपको टैक्स में छूट मिलता है। टैक्स में छूट मिलना, जैसे कि मान लीजिए आपका जो स्लैब रेट है, वो स्लैब आपका जो है दैट इज 5 लाख, तो 5 लाख के ऊपर टैक्स तो लगता है, लेकिन जब आपने कोई लोन ले रखा होगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता है तो आपको टैक्स में एग्जम्पशन मिल जाता है, तो उसको कहते हैं टैक्स एग्जम्पशन। टोटली टैक्सेबल का मतलब होता है जब आपको पूरा का पूरा टैक्स देना है। नंदिनी पेपर सेट कीजिए, ठीक है? एंड यहाँ है टैक्स फ्री, तो टैक्स फ्री का मतलब, एंड क्वाजी टैक्सेबल, क्वाजी मतलब आधा टैक्स लगना, ठीक है? टैक्स फ्री। आंसर विल बी नॉन टैक्सेबल। व्हाई द आंसर विल बी नॉन टैक्सेबल? लेट मी टेल यू, बिकॉज जो आपके पार्टनर्स होते हैं, जो आपकी पार्टनरशिप होती है, उसमें आपका हर एक पार्टनर का पर्सनल लोन, पर्सनल टैक्स जाता है, यानी कि
आपके पार्टनरशिप के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, आपके ऊपर पर्सनल टैक्स लगेगा। यानी अगर उस पार्टनर में से सब पार्टनर्स 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो हर एक तीनों पार्टनर को अपना अपना टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में यू डोंट नीड टू पे द टैक्स, बट यू हैव टू पे द टैक्स पर्सनली। यानी हर एक जो पार्टनर्स है दैट पर्सन इज लाइबल टू पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। बट द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, फर्म और द बिजनेस is not liable to pay any kind of tax because the partnership firm is non-taxable. Clear हो गई बात, समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Next question is, which of the following is the characteristics of the sole proprietorship form of the business organization? It is taxed more than one forms. The owner does not have a direct control. It is easy to form. It is heavily regulated by government. It is hard to dissolve. ठीक है, so answer will be, एक मिनट, जो भी बच्चा म्यूट है म्यूट कीजिए खुद को, नहीं तो क्लास से करूंगी बाहर में। Okay, so what will be the answer of this? The answer of this will be, it is easy to form. What will be the answer? It is easy to form. Exactly. Why? Because the tax more than other form, ऐसा कुछ नहीं है। ओनर के पास डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, ऐसा भी नहीं, डायरेक्ट कंट्रोल है। रेगुलेटेड है गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज्यादा, ऐसा भी नहीं है। इट इज हार्ड टू डिसॉल्व, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, बिकॉज ये बिल्कुल आराम से डिसॉल्व हो जाता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। द ओनली कैरेक्टरिस्टिक विल बी द इट इज इजी टू फॉर्म। ओके, सो आई गेस एमसीक्यूज आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर। एमसीक्यूज हो गए सारे? Yes. Okay, so let's move toward the questions of this paper. The first one is, what is business environment, right? Business environment क्या होता है? Who is going to tell me about it? What is the meaning of business environment? Anyone? Raise your hand. Anyone? Raise your hand. बताइए, business environment का मतलब क्या है? Yes, Anku. Yes, Ma'am, Anku. Business environmental means that uncontrollable in nature and affect the functioning of the organization. Exactly. We can say that if you want to write what is the meaning of business environment, you can write that the business environment is a internal and external factors which is affecting the business, right? It is a environment where the business have to operate, and the impact of those micro and macro environment is on the business all the time. Like this, we have to understand about the pestle, we have to understand about the macroeconomics, ये business, ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो बिजनेस में आपको पढ़ना है। अच्छा, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? अगर लिखना चाहते हो तो फटाफट 2 लाइन लिख लो, राइट अबाउट इट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट लिख रहे हो सारे बच्चे? Yes, ma'am. हाँ, राइट इट। ओके, लिखिए, चलिए। अब बिजनेस एनवायरनमेंट, सब लोग पहले तो कैमरा ऑन करके बैठो सारे बच्चे, और इस क्लास के बाद मैं किसी भी बच्चे को अलाउ नहीं करूंगी अगर कैमरा ऑन करके नहीं बैठोगे तो मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस ही नहीं करूंगी। Everyone turn on your camera, otherwise I'm not going to allow the students to sit in my classroom. I'm not going to allow that student. चलिए, बस एक अंकु के अलावा एक भी बच्चे का नहीं है कैमरा ऑन। आई गेस कुछ बच्चों ने कर लिया है, ठीक है मैम, है मैम, देखिए। हाँ, ठीक है, ओके। प्रत्यय, यस मैम। क्लास के सीआर हो, तुम्हारा ही कैमरा ऑन नहीं रहेगा तो बाकी बच्चे क्या करेंगे बताओ? चलिए, what is business environment, right? A business environment includes all the external and includes all the external factors, A business environment includes all the external factors and forces, which have a certain degree of impact on the business action. A business environment includes all the external factors and forces which have a certain degree of impact on the business actions, decisions and strategies of the firm, ठीक है?
तो बिजनेस फॉर्म का मतलब, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को इंक्लूड करता है जिसके ऊपर बिजनेस का इफेक्ट पड़ता है, और उसी वजह से हम अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, डिसीजन में हेल्प करता है, एक्शन लेने में हेल्प करता है, जिसका इम्पैक्ट और जिसका असर हमारे बिजनेस पे पड़ता है। जैसे कि सोशल फैक्टर पड़ता है कि नहीं, इफेक्ट बिजनेस के ऊपर पड़ता है कि नहीं, Yes. सोशल फैक्टर का इफेक्ट, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर पड़ता है Yes, इफेक्ट। ma'am. Yes, ma'am. ओके, अच्छा, उसके अलावा आप ये देख लीजिए, आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारे इफेक्ट की वजह से हम अपने डिसीजंस बिजनेस के बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, या सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफिकेशन करते हैं हम अपने बिजनेस में, है ना। इसको हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यू कैन राइट द नेम ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड देन यू कैन राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख लीजिए, ठीक है। और एक तरीके से अगर मैं बोलूं आपको, तो बिजनेस फॉर्म मतलब जो आपका एनवायरनमेंट होता है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो एक तरीके से एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो इंक्लूड करता है वो सारे फैक्टर्स को जो फर्म के लिए अपॉर्चुनिटी भी है और फर्म के लिए थ्रेट भी है। समझ में आ रही है बात? मतलब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो है वो आपके बिजनेस को बेनिफिट भी दे सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर आपके बिजनेस को के लिए थ्रेट और खतरा भी है। आ रही है बात समझ में? सो ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट आपके लिए नुकसान है, नहीं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो भी फैक्टर्स हैं इसके, वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स भी देते हैं, आपकी हेल्प भी करते हैं बिजनेस को रन करने में, बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने में, बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में, और साथ साथ में दे आर ऑल्सो द रीजन फॉर द थ्रेट। जैसे कंपटीशन है और दूसरे लोगों ने टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को देखते हुए नई चीजें और नई चेंजेस कर दी, आपने नहीं किया, तो दैट कैन बी द थ्रेट एज वेल, राइट। तो आपके लिए नुकसान भी हो सकता है, आपके लिए खतरा भी हो सकता है, और आपके लिए वो बेनिफिशियल भी हो सकता है, क्या आपका जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर है? समझ में Yes, आया? ma'am. Yes, ओके, ma'am. so that is threat as well as opportunity for the firm. Okay, so what is the characteristics of the characteristics या features of business environment, ये सब लिख लीजिए क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और AKU में हमेशा ना आपसे डीप क्वेश्चन ज्यादातर रेज नहीं किए जाते। द क्वेश्चन विल बी वेरी इजी एंड जो अप टू जो बोलते हैं ना एकदम कॉमन क्वेश्चन है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन ये आया, इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जो दोनों सेम है लिखिए। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स। What will be the characteristics of the business environment? The first one is complex. Complex का मतलब होता है difficult. तो obviously same situation है आपका, जो business environment है उसमें बहुत सारे factors हैं, events हैं, conditions हैं, multiple sources से इसको affect होते हैं। all the time आपको environment में business environment को modify करते रहना पड़ सकता है, change करते रहना पड़ सकता है। अब example में देखिए, जब मोबाइल फोन जो है वो रिलीज हुआ और फिर जो फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया, उन्होंने म्यूजिक सिस्टम कुड नॉट इनविसेज द फोन टेकिंग ओवर देयर बिजनेस, so neither did book publishers imagine that print books will be faces declining demand. So we can say that the business environment is a very complex situation. complex होता है, difficult होता है, हम कई बार business environment को समझ नहीं पाते हैं। जैसे मोबाइल फोन ने कहीं ना कहीं म्यूजिक इंडस्ट्री को, डीवीडी इंडस्ट्रीज को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है कि नहीं, है ना। सो somehow it is basically a threat, जो था वो बन गया आपके म्यूजिक इंडस्ट्रीज के लिए, है ना। तो यहाँ पर वही चीज कहा जा रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट थिंग, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड व्हेन द थिंग विल बी फ्लो एंड व्हाट विल बी हैपन टू योर business. So we have to very ready for the business environment and impact of business environment. We have to ready to face that. Okay, next one is dynamic. Dynamic, next point लिखिए dynamic. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक? डायनेमिक का मतलब जो चीज बदलता रहता है, जो चीज स्थिर नहीं रहता है, जो रिजिड नहीं रहता है। तो डायनेमिक है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, बिल्कुल डायनेमिक है, आपका एनवायरनमेंट बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे नई टेक्नोलॉजी का आ जाना, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। So we can say that it is dynamic and we should change the environment according to the demand in the market. ठीक है, so it is a dynamic. ठीक है, ये चेंज होता रहता है, मॉडिफाई होता रहता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट वन इज फार रीचिंग इम्पैक्ट।
far reaching impact. Next point is far reaching impact. ठीक है, far reaching impact. ठीक है, फार रीचिंग इम्पैक्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आपका उसका जो इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन में दैट इज फार रीचिंग. बिजनेस जिसको रियलाइज हो जाता है इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन देयर ग्रोथ, जिसको रियलाइज हो गया कि उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस में है. किसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस में है? आपके बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट आपके बिजनेस में है ऑन द ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी. वो अपने आप को अडेप्ट करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली. ठीक है, उस हिसाब से एग्जाम्पल में आप देखिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे लाइक आदित्य बिरला, ठीक है, ग्रुप. उन्होंने क्या किया? उन्होंने चेंजिंग एनवायरनमेंट में टैप किया खुद को और वो सीमेंट से पता है कहाँ पहुंच गए? रिटेल में. आपका वो भी किस रिटेल में पता है? पैंटालून्स जाते हो ना? पैंटालून्स आदित्य बिरला ग्रुप का है, पता है ये बात? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, it is पता a चला. yes, it is a part of आदित्य बिरला ग्रुप. पैंटालून्स जो है वो रिटेल है और आदित्य बिरला पता है क्या बनाते थे पहले? सीमेंट. So they understand about the demand of it, that retail sector have a large growth and the organized sector का बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में, तो उन्होंने पैंटालून स्टार्ट कर दिया. सो आदित्य बिरला ने वो अनटैप्ड मार्केट के बारे में समझा, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में समझा और मार्केट का डिमांड को देखते हुए उन्होंने खुद को सीमेंट से टेक्सटाइल की तरफ भी मूव कर दिया. ठीक है, और अब तो वो टेलीकॉम में भी आने लगे हैं धीरे धीरे. So that is because they are able to understand the need of the people in the market. Everyone turn on your camera. Okay. Next one is next point is next feature is multifaceted. Face से बना है faceted, multifaceted. ठीक है, multifaceted. मल्टीफेसेटेड मतलब बहुत सारे चेहरे हैं इसके बिजनेस एनवायरनमेंट के. कैसे हैं मैं बताती हूँ. ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी एंड डायनेमिज्म, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है. कॉन्टिन्यूसली वो अपने डिमांड को देखते हुए, ऑब्जर्वर को देखते हुए अपने आप को बदलता रहता है. तो आपने ये चीज देखा होगा कि जो आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट है जिसमें अपॉर्चुनिटी है, इसके साथ साथ थ्रेट भी है जो मैंने बताया. एग्जाम्पल में देखिए, plasma TVs and LCDs gave away to the LEDs. ठीक है, some manufacturers saw it on opportunity and started producing LED instead of LCDs. तो multifaceted का मतलब ये है कि यहाँ पर you will get the both option. You have opportunity, you have threat. If you are able to grab the information, knowledge about the market, and if you are able to innovate some better thing, आपने कुछ नया innovate कर लिया और जिसका benefit हुआ market में, so that will become the opportunity. But if you will make something that is not profitable to your business, then that will be the threat for your business, right? So here it is totally depend upon that how you are taking the business environment, how you are able to understand the complexity and how you are able to manage the situation in the business environment. So it is a multifaceted, they have multiple face of the business environment. It have a threat, it have an opportunity, it is the profitable, it is the loss. So it have a multiple face. So I guess these points are clear to all of you. Point clear हो गया सबको? Yes, ma'am. Okay. So the first question, what is business environment and the characteristic of business environment? That is clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, no, it is clear. हाँ, तो let's start with the new next one. Yes, Anku. मैम इसमें फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में लो इनकम लेवल हो सकता है एंड लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. नहीं, कोई ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू राइट अदर थिंग्स विच, अगर आपको बाहर से कुछ मिल रहा है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये 4 पॉइंट ही फीचर्स और आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में सेट हो जाएंगे. डोंट नीड टू राइट लो टेक्नोलॉजी एंड ऑल, बट वी हैव टू टेक इट इन द होल फॉर्म ना. जैसे कि आपका डायनेमिक है एनवायरनमेंट. और एक और चीज यहाँ पर आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज द all time work. It is a constant, ये continuous process in the organization. आपको business environment को continuously check करते रहना है, continuously आपको उसको observe करते रहना है. Otherwise एक भी point miss हो गया, that will become threat for your business. ठीक है? So all the time it is a work of the managers and the researchers that they have to observe the business environment. So it is not one day process, but it is going to be all the time that is going to be happening in the
business. Yes, Pratyay. मैम इसको हम लोग फॉर रीचिंग इम्पैक्ट को क्या बोल सकते हैं मैम? जैसे मल्टीफेसिलिटेड को बहुत सारे चेहरे या ठीक है, डायनेमिक बिल्कुल जो हमेशा बदलता रहता है। बिल्कुल वैसे मैम, कॉन्स्टेंटली। हाँ, और मैम फार रीचिंग इम्पैक्ट? far reaching impact, it means that how you are seeing the impact of the business environment in your business. ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट का अपने आप बिजनेस में क्या इम्पैक्ट देखते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा बिजनेस एनवायरनमेंट का, तो यू आर नॉट गोइंग टू चेंज योरसेल्फ, बट इफ यू आर सीइंग that there is an impact, you can change. So it's totally depend upon the business observer that how they are taking the impact of the business environment in their business. Clear हो गई बात, समझ में आया प्रत्यय? यस मैम। Okay, so let's move toward the next question, and that is, what are the processes of the environmental analysis, right? What is the processes of the environmental analysis? तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो इसी से मिलता जुलता था कि इन्वायरमेंटल एनालिसिस प्रोसेस में स्कैनिंग आंसर था। अब इसको पूरा अच्छे से देखते हैं कि व्हाट इज द बेसिकली मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस। तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है कि जहां पर हम आइडेंटिफाई करते हैं रिलेवेंट फैक्टर को कि किसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके बिजनेस पे। ठीक है, सो वी कैन से, लिखिए इसमें, इन्वायरमेंटल एनालिसिस इज अ प्रोसेस, इन्वायरमेंटल एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग the relevant factors, identifying the relevant factors that have a direct or indirect impact, on the effective and efficient functioning, have a direct or indirect impact on the, लिखा, direct or indirect impact on the effective and efficient functioning of the business, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनवायरमेंटल एनालिसिस एक तरीके का एक स्ट्रैटेजिक टूल है। क्या है वो? एक तरीके का एक स्ट्रैटेजिक टूल, एक तरीका है। क्या तरीका है? क्या करता है भाई? तो एनवायरमेंटल एनालिसिस आइडेंटिफाई करता है वो सारे फैक्टर्स को, देखता है कि किसका कितना मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आई बात समझ में? जैसे जीएसटी जैसे ही आया, दैट इज अ पार्ट ऑफ द लीगल फैक्टर। ठीक है, लीगल फैक्टर का पार्ट था भाई। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक पर्सन पे इस चीज का इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? ना, हम लोगों पे पड़ा कि नहीं पड़ा? बिजनेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट था और हम लोगों पे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट था। तो सेम चीज बता रहा है यहाँ पर कि जो एनवायरमेंटल एनालिसिस है वो एक प्रोसेस है, वो एक स्ट्रैटेजिक टूल है जो कि आइडेंटिफाई करता है, पहचानने में हेल्प करता है कि कौन सा रिलेवेंट फैक्टर है जिसका हम पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे बिजनेस के फंक्शन पर। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एनवायरमेंटल एनालिसिस। अब ये एक प्रोसेस है तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा कि नहीं? प्रोसेस है तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो एनवायरमेंटल जो एनालिसिस है उसके में 4 प्रोसेस है। देखिए ये प्रोसेस है, इसमें 4 स्टेजेस हैं। देयर आर 4 स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। पहला लिखिए स्कैनिंग, दूसरा लिखिए मॉनिटरिंग, स्कैनिंग, मॉनिटरिंग, ठीक है। थर्ड लिखिए फॉरकास्टिंग, फिफ्थ लिखिए असेसमेंट, फोर्थ लिखिए असेसमेंट, SMFA, स्कैनिंग, मॉनिटरिंग, फोरकास्टिंग, असेसमेंट, SMFA। अच्छा, तुम लोग को यहां तक क्लियर हो गया सब, जितना भी मैंने बताया अभी तक? यस मैम। Yes, ma'am. एवरीवन, ठीक है।
तो चलिए स्कैनिंग क्या होता है सुन लीजिए। ये तो समझ में आया, 4 प्रोसेस में, इसमें 4 स्टेप कौन कौन से हैं? स्कैनिंग है, आपका मॉनिटरिंग है, फोरकास्टिंग है और असेसमेंट है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज स्कैनिंग। अब स्कैनिंग क्या करता है सुनिए, जो मैंने आपको बताया भी, जो इन्वायरमेंटल एनालिसिस है वो तो देखता है कौन सा रिलेवेंट फैक्टर है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस में इंपैक्ट कर रहा है। तो एनालाइज करना, एक तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करना, इन्वायरमेंटल एनालिसिस। अब एनालिसिस का क्या क्या तरीका है? पहला स्कैनिंग, हम इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे जो इन्वायरमेंट में है, और यहाँ देखेंगे कि कौन कौन सा जो इंफॉर्मेशन है हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, कौन कौन सा डेटा। यहाँ पर इट इन्वॉल्व्स द इंफॉर्मेशन गैदरिंग फॉर एसेसिंग द नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, मतलब नेचर देखेंगे इन्वायरमेंट का कि किस चीज का हमें अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, क्या हमारे लिए अनसर्टेनिटी है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या मतलब क्या डायनेमिक्स है। तो हम पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन अपने बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या करेंगे, गैदर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम फ्यूचर में होने वाले एनवायरमेंटल चेंजेस के बारे में सोचेंगे कि क्या क्या एनवायरमेंटल चेंजेस हम कर सकते हैं, और ये जो है वो हमें मतलब एक तरीके से इंफॉर्मेशन देने का काम करेगा। समझ में आई बात? स्कैनिंग के थ्रू हम डेटा और इंफॉर्मेशन को एक तरीके से गैदर करेंगे और हम समझेंगे कि बिजनेस में क्या नया ट्रेंड चल रहा है, किसका क्या अपॉर्चुनिटी है, किसका क्या थ्रेट है, हमारे बिजनेस में क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो ये सब चीज हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में होगा, ठीक है। वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द थिंग्स इन दिस। व्हाट विल बी हैपन इन द मॉनिटरिंग? मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को देखना, इंस्पेक्ट करना, समझना, है ना। जैसे क्लास के मॉनिटर का काम क्या होता है कि क्लास में हो रही सारी एक्टिविटीज को देखना, भाई बच्चे ने हल्ला किया, मैम को बताया जाएगा। So that is the work of the monitor. The same work is done in the monitoring. Here we are going to involve the tracking environmental trends and event. We are going to track the things. Here we are going to audit the environment. Audit का मतलब हमेशा याद रखिएगा, that is related with inspection. जो चीज को हम ध्यान से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। So here in the case of the monitoring, what will be happen? It is a work where we are going to track the environmental trends and events. We are going to audit the environment. Environment को audit करेंगे हम और देखेंगे कि environmental influences business में किस तरीके से influence कर रहा है। तो here in the monitoring we are बोलते हैं निरीक्षण करेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, ऑडिट करेंगे कि भाई बिजनेस एनवायरमेंट का इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे क्या पड़ रहा है। स्कैनिंग में देखो शॉर्टकट में याद करना है, तो स्कैनिंग में इंफॉर्मेशन गैदरिंग, मॉनिटरिंग में ऑडिटिंग, मॉनिटरिंग में ऑडिट करेंगे। ऑडिट सुना है ना तुम लोगों ने? ऑडिट क्या होता है? यस मैम। ऑडिट क्या होता है अगर मैं आपको कॉमर्स के टर्म्स में बताऊं तो ऑडिट का मतलब होता है जब कोई ऑडिटर यानी जो सीए होता है, चार्टेड अकाउंटेंट होता है, आईसीएआई एग्जामिनेशन, आईसीएआई के थ्रू, आईसीएआई एक एसोसिएशन है, काउंसिल है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट जो है उसमें से वो पास होकर जब वो सीए बनता है तो वो एक तरीके को ऑथराइज्ड ऑडिटर होता है। आप उससे अपने बिजनेस को ऑडिट करा सकते हैं। ऑडिट में आपके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह को चेक करेगा। किसको चेक करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह को वो चेक करेगा कि आप अपने बिजनेस को सही चला रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ मॉनिटरिंग में भी द सेम थिंग विल बी हैपन। Here you are going to analyze that our business is running properly or not. Open in this situation. यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? Everyone, this point is clear. What will be happen in the analysis? Now, ये scanning and monitoring. What will be in the forecasting? Forecasting में क्या होगा लिखिए। Forecast मतलब होता है कि क्या जो चीज फ्यूचर में होने वाला है उस चीज को हम पहले ही फोरकास्ट करते हैं, यानी पहले उस चीज को एनालाइज कर लेते हैं। तो फोरकास्टिंग जो है इट इज अ स्टेप ऑफ फोरकास्ट दैट व्हाट लाइकली टू हैपन, मतलब आगे चल के क्या हो सकता है। जैसे सेल्स को फोरकास्ट कर लेंगे कि अरे भाई हम ईयरफोन बना रहे हैं कि 20,000 यूनिट जो है वो एक साल में सेल हो जाएगा, तो दिस इज अ फोरकास्टिंग। तो फोरकास्ट हम कब करते हैं? पिछले जो फ्यूचर को ऑब्जर्व करने के लिए, फ्यूचर को बताने के लिए कई बार हमें पास्ट एक्सपीरियंस को देखना पड़ता है, ठीक है। तो हमने पास्ट में जो चीजें फेस किया है या तो डिफिकल्टीज और जो हमने अपॉर्चुनिटीज ग्रैब किया है
उसको देखते हुए हम आगे फॉरकास्टिंग का काम करते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो स्टेप है दैट विल बी लाइकली टू हैपन, तो यहाँ पर हम इस चीज को ध्यान देते हैं कि जो आपका फॉरकास्ट है मतलब एंटिसिपेट, मतलब आगे क्या हो सकता है, मतलब व्हाट कैन बी पॉसिबल because of the business environment. Here we are going to anticipate the things, ठीक है। जैसे हम यहाँ सारे environment के ऊपर, सारे key forces के ऊपर काम करेंगे, understand करेंगे कि क्या क्या influence कर सकता है हमारे changes को, या मतलब एक तरीके से forecasting is related with the future aspect, that what can be possible in the with our business due to the business environment. So here we are going to forecasting, and the assessment में हम finally opportunities और threat को identify करेंगे, और उसके बाद हम competitive position को अपने business में analyze करेंगे। assess करना, जैसे marks कैसे हम देते हैं, assessment करते हैं ना कि भाई 50 नंबर आया, 60 नंबर आया 100 में, so like this is the assessment here in the business environment. So scanning, monitoring, forecasting and assessment, these are the basically steps of the environmental analysis. So we are going to understand about it in the next class. ठीक है? So see you all in the next class.